we're not actually building animals, we're building ghosts. The rate at which AI is progressing, I think we might have AI that is smarter than any human by the end of this year. These like sort of ethereal spirit entities, because they're fully digital and they're kind of like mimicking humans, and it's a different kind of intelligence. And then probably by 2030 or 2031, call it 5 years from now, AI will be smarter than all of. I think we're talking about a technology here which will allow you to create new things. AI can write you excellent, imitative verse that sounds Elizabethan. It cannot write you Shakespeare. But on a practical basis, I expect on a day-to-day basis people's lives to be significantly enhanced with it across everything they touch. So till now we have covered the basics of AI, जहाँ पर हम लोगों ने प्रोजेक्ट साइकिल देखा, फिर हम लोगों ने देखा कि मॉडलिंग कैसे होती है, फिर हम लोगों ने उन मॉडल्स को इवैल्यूएट करने के स्टेप्स देखे. Now comes the part of AI domains. One of the domains of AI is computer vision, जहाँ पर we make the machines see in the sense वो humans जैसे see नहीं करते हैं, वो infer करते हैं image data को and then they try to predict कि what are the objects present in the picture or what are the people present in the picture, how do you recognize a face. So for computer vision there are three main topics. First one is defining computer vision, how computers can see and understand images. Second part is what are the tasks that a computer vision model performs, like classification हो गया, detection हो गया, segmentation हो गया, and then a little more on convolutional neural network. So हम लोगों ने neural network की बात की थी AI modeling में. Same neural network जब हम लोग computer vision में use करते हैं उसको कहा जाता है convolutional neural networks and how it works. So, but before we get into that, we want to understand कि what is the difference between image processing, image editing versus computer vision. So, image processing एक बहुत ही simple way होता है. For example, आपने image को crop कर दिया, या फिर आपने image को zoom कर दिया, या फिर आपने image के colors change कर दिए, आपने brightness बदल दी, थोड़े color में filters ले आए. So, all this comes under image processing, which is not intelligent. यहाँ पर आपको ये चीज़ें नहीं पता चल रही है कि इमेज के अंदर क्या है. वेयर एज व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग कंप्यूटर विजन यू कैन स्टार्ट टू एक्सट्रैक्ट मीनिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, इज इट एन इमेज ऑफ अ कैट और इज इट एन इमेज ऑफ अ डॉग. इसकी वजह से क्या होता है, कंप्यूटर विजन मॉडल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द विजुअल इनपुट. फॉर एग्जाम्पल, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है, द इमेज मॉडल और द कंप्यूटर विजन मॉडल विल बी एबल टू सी ओके सामने से एक SUV आ रही है या फिर एक ट्रक आ रहा है. So this is a superset of image processing. इसको image processing के अंदर ही आता है ये, but it is something called intelligent image processing. How does computer vision work? So उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि human vision कैसे काम करता है, right? So for example, this is an object and the light rays from this object get into the eyes. So this is a human eye. एंड इसके अंदर जो लाइट रेज आती है, एंड देन आफ्टर दोज लाइट रेज आर प्रोसेस्ड बाय योर आई, आपका जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर इन लाइट रेज को प्रोसेस किया जाता है. एंड देन यू कैन स्टार्ट टू सी ओके दिस इज अ रेड कलर, दिस इज अ फुटबॉल, दिस इज अ कैट क्रॉसिंग अ रोड. सिमिलर प्रोसेस जब हम लोग कंप्यूटर के अंदर या मशीन्स के अंदर डालते हैं तो उसमें भी सिमिलर प्रोसेस होता है, बट जो हार्डवेयर है, जो प्रोसेस है, वो थोड़ा सा बदल जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इन अ कंप्यूटर विजन मॉडल वी गिव एन इनपुट इमेज और अ वीडियो, और एक सेंसिंग डिवाइस यूज होता है. जनरली इट्स अ कैमरा, एंड इंटरप्रेटिंग डिवाइस इज बेसिकली एन AI मॉडल. सो दिस इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर विजन. एंड फाइनली देर इज अ रिजल्ट इन अ सेंस की व्हाट इज द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट, डज द फेस मैच ऑफ द यूजर, या फिर आर देर एनी अदर थिंग्स दैट नीड इंटेलिजेंस. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज क्रॉसिंग द रोड, तो वहाँ पर ट्रैफिक कैमरा डिटेक्ट करेगा कि ओके राइट नाउ अ पर्सन इज क्रॉसिंग द रोड, वो जो रेड लाइट है वो रेड ही रहनी चाहिए. सो दीज आर द 4 स्टेप्स इन हाउ कंप्यूटर विजन वर्क्स. सो इसकी एप्लीकेशंस बहुत जगह पे आती है. आप ये समझोगे जैसे एक ह्यूमन देखता है चीज़ों को, उसकी वजह से ह्यूमन क्या क्या कर सकता है. इट कैन रिकग्नाइज फेसेस, इट कैन सर्च फॉर ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है फुटबॉल कैसे दिखती है तो आप घर में जाके ढूंढ सकते हो कि फुटबॉल जैसी कौन सी चीज़ है, वो देख पाओगे. सेल्फ ड्राइविंग कार्स में बहुत यूज़ होता है. सो फेशियल रिकग्निशन इज़ वन एप्लीकेशन जो आपके मोबाइल फ़ोन्स में सिक्योरिटी सिस्टम होता है. कोई आपका फेस, अगर आप अपना फेस यूज़ कर रहे हो फेशियल रिकग्निशन में, तो आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा. फेशियल फिल्टर्स, जो एडवांस्ड फेशियल फिल्टर्स है इंस्टाग्राम पे, फॉर एग्जांपल एक कैट का फेस लग जाता है आपके वीडियो पे, या फिर एक डॉग का फेस लग जाता है, या फिर आप इमेज को चेंज कर सकते हो. सिमिलरली गूगल सर्च भी एक चीज़ प्रोवाइड करता है. आप गूगल को एक इमेज दो
एंड इट विल ट्राई टू फाइंड आउट ऑल दोज रिजल्ट्स जहाँ पर वो स्पेसिफिक इमेज या इमेज के जो फीचर्स है वो प्रेजेंट है. एंड हम सब ने सुना होगा कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ गई हैं. टेस्ला इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज विच क्रिएट सेल्फ ड्राइविंग कार्स. सो वहाँ पर कंप्यूटर विजन का बहुत ज़्यादा यूज़ है. सो फॉर कंप्यूटर विजन देर आर a couple of tasks that it is performing behind the scenes. Let's say there is only a single object. हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहे. Let's try to do it very simply. एक सिंगल ऑब्जेक्ट है तो कंप्यूटर विजन दो चीज़ें कर सकता है. आइदर इट कैन क्लासीफाई इन द सेंस कि आपने कंप्यूटर विजन को एक इमेज दी. इट कैन से दैट इट इज़ अ कैट. इट इज़ क्लासीफाइंग इट इनटू अ कैट. वेराज अगर आपने एक डॉग की इमेज दी तो कंप्यूटर विजन मॉडल बोल सकता है ओके दिस इज़ अ डॉग. या फिर आपने एक फायर हाइड्रेंट की फ़ोटो दी या फिर कार की फ़ोटो दी या ट्रक की फ़ोटो दी. वहाँ पर जो इमेज मॉडल है और कंप्यूटर विजन मॉडल है दैट विल असाइन द लेबल टू द इमेज. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लासिफिकेशन. बट राइट नाउ अगर उसको थोड़ा और एक्यूरेट करना है और प्रिसाइज करना है यू कैन ऑल्सो ऐड लोकलाइजेशन. तो कंप्यूटर विजन मॉडल कैन ऑल्सो डू लोकलाइजेशन कि वो जो ऑब्जेक्ट है इमेज के अंदर वो प्रेजेंट कहाँ पर है. व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विद इन द इमेज. फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी इमेज है. फॉर एग्जाम्पल एक फुटबॉल फील्ड की इमेज है. सो दिस इज अ फुटबॉल फील्ड. दीज आर द गोल पोस्ट्स एंड यू कैन आस्क द मॉडल. एंड यहाँ पर फुटबॉल है. यू कैन आस्क द मॉडल वेयर इज द फुटबॉल प्रेजेंट. देन इट विल outline the place ki okay this is the position of the football in that particular image. So this process is also known as localization. You try to find out the local address of the object within the image. So this is just for single objects. What if there are multiple objects in the image? तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं object detection. In a particular image there can be multiple objects. For example यहाँ पर 4 लोग आपको दिख रहे हैं. So this is object 1, this is object 2, this is object 3, this is object 4. Not only similar kind of objects, it can be a cat plus it can be a dog, it can be a duck. So जितने भी objects present है उस image में उसको detect करना कहा जाता है object detection. Whereas if you want to get one step further to actually know कि what is the exact place the person is present or the object 1 is present, उस process को हम लोग कहते हैं instance सेगमेंटेशन. इंस्टेंस का मतलब बेसिकली ऑब्जेक्ट ही होता है एंड सेगमेंटेशन का मतलब होता है एग्जैक्ट आउटलाइन. सो एग्जैक्ट आउटलाइन आपको मिल जाएगी अगर आप इंस्टेंट सेगमेंटेशन कर रहे हो. ये जो दोनों प्रोसेस हैं ये सिर्फ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है. वेयर एज फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट्स देयर इज क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन. But how does the computer vision model understand कि where is the object present? Okay, एक image में cat present है but top left में present है. एक dog present है, एक bottom right में present है. How does a computer vision model understand that? In order to know all these things, you also have to get into the basics कि how are images actually stored. So अगर आप यहाँ पर एक image देखोगे, ये काफ़ी बड़ी image है, but the reason I put this image here is you can see small squares. So these small squares can also be called pixels, just like matter has a smallest indivisible unit called atom, right? Similarly, image का जो indivisible unit होता है उसको बोलते हैं हम लोग pixel. This is a basic unit of image और हर एक pixel का एक position होता है. For example, this is an image. यहाँ पर आप इसको बोल सकते हो x axis है, यहाँ पर बोल सकते हो y axis है. यहाँ पर बहुत छोटे पिक्सल्स होंगे एंड जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे आपकी इमेज में उतनी ही ज़्यादा डिटेल्स आप रख सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक इमेज है एंड इसमें सिर्फ 4 ही पिक्सल हैं 1, 2, 3 एंड 4, जो इमेज की क्वालिटी है वो बहुत कम होगी. बट जैसे जैसे आप पिक्सल्स बढ़ाते रहते हो, फॉर एग्जांपल अ फुल HD स्क्रीन, आपका जो मॉनिटर है 1 HD monitor has almost 1920 in the x-axis and 1080 pixels on the y-axis. So this kind of an image is called full HD. And the total number of pixels in any image is known as the resolution of that image. What do you mean by that? जितनी लंबी जितनी ज़्यादा resolution होगी उतनी ही ज़्यादा image detailed होगी. So pixel values क्या होती हैं? As I said कि the basic indivisible unit of an image is pixel and each pixel represents a number. So basically for the computer it represents a number, for humans it represents a color. Color can be of two types. One is just black and white and the other can be just color. तो हम लोग यहाँ पर black and white देखते हैं. तो black and white image में एक pixel है तो pixel के
0 से लेके 255 तक वैल्यूज हो सकती हैं. 0 मीन्स जीरो कलर, नो कलर, सो दिस मीन्स दिस विल बी अ ब्लैक पिक्सल. वेराज अगर 255 है तो दिस मीन्स दिस विल बी फुल ऑफ कलर, मतलब सारे कलर्स हैं इसमें, तो 255 इज द पिक्सल वैल्यू. इसके बीच के जो कलर्स है, फॉर एग्जाम्पल 170 हो गया या फिर 20 हो गया, दिस विल ऑल्सो हैव सम कलर बट दिस विल बी ग्रे इन नेचर. अब जितना जितना उसका वैल्यू बढ़ाते जाओगे उतना वो ग्रेइशनेस है वो खत्म होता जाएगा, इट विल मूव टुवर्ड्स वाइट. So simply speaking, 0 means no color, whereas 255 means full of color. So total number of pixel values कितनी हो गई including 0? आप बोलोगे कि यहाँ पर 256 values है because it goes from 0 including 0 and goes till 255. इसको ये भी बोलते हैं कि this is an 8-bit format. 8-bit format का मतलब है 2⁸ becomes 256. सो यहाँ पर 2 की हम लोग 8 टाइम्स वैल्यू चेंज कर सकते हैं. दैट इज वाई वी कॉल इट 8-bit फॉर्मेट. मूविंग ऑन टू द RGB काइंड ऑफ इमेजेस. जब भी हमें कोई कलर क्रिएट करना है, एवरीवन नोज कि RGB आर द प्राइमरी कलर्स. प्राइमरी कलर्स मतलब इन कलर्स के थ्रू आप बाकी सारे कलर्स क्रिएट कर सकते हो. सो ईच पिक्सल इन दिस सिनेरियो इट विल हैव 3 काइंड ऑफ वैल्यूज. इट विल हैव अ रेड वैल्यू, it will have a green value, it will have a blue value, and इनकी जो range है this will also go from 0 to 255. Green also goes from 0 to 255 and blue also goes from 0 to 255. What does this mean? यहाँ पर red हो जाएगा completely 0 and यहाँ पर 255 है अगर तो means it is completely red. जब हम लोग इस चीज़ का कॉम्बिनेशन लगाते हैं किसी भी स्क्रीन के अंदर RGB का, फॉर एग्जांपल R इज़ 120, ब्लू इज़ 100, G इज़ प्रोबेबली 10, तो इससे एक स्पेसिफिक कलर क्रिएट होगा जो इमेज या फिर कलरिंग स्केल पे कहीं पे आएगा. इट कैन बी, इट हैज़ अ लॉट ऑफ रेड, इट हैज़ अ लॉट ऑफ ब्लू, तो थोड़ा पर्पलिश हो सकता है कलर. ठीक है. सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ इमेजेस विच कंप्यूटर्स कैन रीड on basis of the pixel values. The second basic of images is how does a computer identify or how does a computer vision model identify कि image में क्या क्या चीज़ें हैं. For example, if you look at this image, यहाँ पर computer vision model detect करता है कि this is an edge, even this is an edge, and this can be the body. I will not get into the complications, but how does a computer vision model understand it? Once you feed it a lot of images, for example 100 images दी आपने, 1000 images दी, 10,000 images दी, तो वो सारी images के ऊपर जब वो ट्रेन हो जाएगा it will start to understand कि ओके इमेज में एज जो है वो हर जगह पे ऐसा दिखता है. ज़रूरी नहीं है कि इसी इमेज में ऐसा दिख रहा है, वो हर इमेज में एज ऐसा ही दिखेगा. यहाँ पर कुछ अलग वे होगा, यहाँ पर कुछ अलग पैटर्न होगा. अगर एज के दोनों साइड में कुछ डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, एक बॉडी के अंदर सिर्फ सिमिलर सेट ऑफ पिक्सल्स अवेलेबल है. बेसिकली सो दिस इज़ नॉट एन एज, दिस इज़ अ कॉर्नर, क्योंकि कॉर्नर में यहाँ पर 2 अलग अलग साइड के हैं. सो दिस इज़ हाउ द कंप्यूटर विजन मॉडल स्टार्ट्स टू अंडरस्टैंड वेरियस फीचर्स ऑफ द इमेज. हाउ इज़ दिस यूजफुल? सो जब आप कैट की इमेज दोगे तो उसमें वो लोग उसमें कंप्यूटर विजन मॉडल आईज डिटेक्ट करने लगेगा, नोज डिटेक्ट करने लगेगा, विस्कर्स डिटेक्ट करने लगेगा. एंड दिस इज़ हाउ अ कंप्यूटर विजन मॉडल कैन अंडरस्टैंड कि ओके आईज है, नोज है, कैट या डॉग हो सकता है, विस्कर्स है, कैट या डॉग हो सकता है. वेराज जब फेस का शेप देखने जाएं, फेस का शेप भी डिटेक्ट कर सकता है एआई मॉडल. तो डॉग का जो फेस का शेप है, सॉरी फॉर द डायग्राम, डॉग का फेस शेप थोड़ा अलग होगा, कैट का फेस शेप थोड़ा अलग होगा. दैट इज़ हाउ इट कैन स्टार्ट टू लेबल द इमेजेस. एंड दीज आर द इमेज फीचर्स विच अ कंप्यूटर विजन मॉडल अंडरस्टैंड्स. बट इवेंचुअली ये जो फीचर्स हैं एक्सट्रैक्ट कैसे हो रहे हैं, दैट इज़ डन बाय समथिंग कॉल्ड कॉन्वोल्यूशन. एंड जो इसके पीछे का एआई मॉडल है दैट इज़ नोन एज अ न्यूरल नेटवर्क. अ न्यूरल नेटवर्क इज़ अ मैथमेटिकल कंसेप्ट. इसमें थोड़े लेयर्स होते हैं. लेयर्स होता है, एक इनपुट लेयर होता है जहाँ पर आप जितने भी पिक्सल्स हैं, पिक्सल की वैल्यूज़ सेंड करते हो. यहाँ पर वो पार्ट है जहाँ पर आप 0 to 255 सेंड कर रहे हो, या फिर R का 0 to 255 सेंड कर रहे हो, G का सेंड कर रहे हो, B का सेंड कर रहे हो, एंड देन इट ट्राइज टू प्रोसेस इट. सो दिस इज़ द इनपुट लेयर.
This is the processing layer, and then you finally get an output layer. Output में either you can get a label like cat or a dog. So convolution में एक छोटा सा पार्ट होता है कर्नल का. सो यहाँ पर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कर्नल क्या होता है, बट जितने भी आपके पिक्सल वैल्यूज़ हैं, कभी कभी आपको पिक्सल्स को थोड़ा लाइट करना होता है या फिर कभी डार्कन करना है, कभी आपको उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, कभी रेड को एक्सेंचुएट करना है, ग्रीन को ज़्यादा करना है. तो पिक्सल को आप ज़्यादा टच खुद से नहीं कर सकते हो. यू हैव टू मल्टीप्लाई द पिक्सल वैल्यू विद समथिंग. लेट्स से इट एज एक्स. वंस यू मल्टीप्लाई अ पिक्सल ऑफ 255 विद प्रोबेबली 5, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 51. तो आप देख रहे हो कि जो पिक्सल की वैल्यू है वो चेंज हो रही है. यहाँ पर ये एक्स क्या है? एक्स को हम लोग कहते हैं कर्नल. इट इज़ लाइक अप्लाइंग सम फिल्टर अक्रॉस द पिक्सल सो दैट द कलर चेंजेस. एंड यूजिंग दीज कर्नल्स, सिर्फ एक कर्नल नहीं होता है, मल्टीपल टाइप ऑफ कर्नल्स यूज होते हैं कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में. एंड वंस यू अप्लाई दोज कर्नल्स टू एन इमेज, द computer vision model can extract features like edges and corners from the images. If you want to understand more, I have already created a video on computer vision जो channel पे already available है. So convolutional neural network के 4 layers हैं. First is the convolutional layer जहाँ पर high level features extract किए जाते हैं. For example, edge निकाल लिया, corners निकाल लिए. बट वंस यू गेट दीज वैल्यूज़, कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव बन जाती हैं, जैसे -1 हो गया, -10 हो गया. तो इन ऑर्डर टू करेक्ट दैट देयर इज ऑल्सो अ रेलो लेयर which is also known as rectifying linear unit. It removes the negative values and sharpens the features. Then there is another layer called pooling layer. So आपकी जो इमेज है उसमें बहुत ज़्यादा पिक्सल्स होते हैं. उतने ज़्यादा पिक्सल्स आप प्रोसेस करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. तो इन ऑर्डर टू कंप्रेस द इमेज, एक पूलिंग लेयर का यूज़ होता है विच रिड्यूसेस द इमेज साइज, बट फीचर्स सारे इंपॉर्टेंट उसमें रहते हैं. एंड देन देयर इज fully connected layer which outputs the probability values. For example, it can say cat is 95% sure, dog is 3% sure, a monkey is 2% sure. तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जिसका probability आएगा that will be labeled as cat. So 4 layer है: convolutional layer, rectifying linear unit, pooling layer and fully connected layer. So we have covered द कंप्यूटर विजन टॉपिक. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है. जनरली आपको पूछा जाता है क्लासिफिकेशन क्या है, लोकलाइजेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन क्या है, इंस्टेंस सेगमेंटेशन क्या है, हाउ डज CNN वर्क, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पिक्सल्स, राइट, RGB क्या होता है, कॉन्वोल्यूशन क्या होता है. तो हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे, 12 नहीं करेंगे, सिर्फ 5 करेंगे, सो दैट यू अंडरस्टैंड हम लोगों ने अभी जो पढ़ा है. व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्वोल्यूशन लेयर इन अ CNN? कॉन्वोल्यूशन लेयर जो फर्स्ट लेयर होती है, इसमें से हम लोग फीचर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एजेस, कॉर्नर्स और द बल्क. सो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है. विच कंप्यूटर विजन टास्क आइडेंटिफाइज वॉट एन ऑब्जेक्ट इज एंड वेयर इट इज एन इमेज. वॉट मतलब क्या, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं क्लासिफिकेशन. Is it a cat or is it a dog? And where means localization. Where is the local address of the image? So B option would be the correct answer for this. What does the ReLU layer do in a CNN? It is also known as rectifying linear unit. Please verify. I hope this is the correct answer, but correct definition. So what does the ReLU layer do? It removes negative values in pixels and sharpens the image. So कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है यहाँ पर? Reduces the image size? No, this is the pooling layer. Assigns importance to objects in the image? This is not it. Removes negative values and retains positive ones. So C option is the correct answer to this. Okay, so practice question 5. The goal when evaluating an AI model is to, the goal for evaluation is only one, which is you have to minimize the error, ताकि जो एक्यूरेसी है आपकी वो एकदम इम्प्रूव हो जाए. लाइक आई गिव एन एग्जाम्पल प्रीवियसली, अ 95% एक्यूरेट मॉडल स्टिल हैज़ एन एरर रेट ऑफ 5%. सो ये जो एरर है हमें रिड्यूस करना होता है मे बी 3%, 2% या 1% तक, जिससे जो हमारी एक्यूरेसी है वो इंक्रीज हो जाएगी 97, 98 या 99% तक. So with this we have completed the practice for computer vision as well.